Today we will discuss spinal cord lesions, and those spinal cord lesions will be specifically about the tracts that are descending and ascending across the spinal cord. So let's first start our discussion with the corticospinal tract, that is the most important and the most frequently tested tract in the examination. Corticospinal tract, as the name indicates, it's from the cerebral cortex and end up in the spinal cord. And we have already discussed this tract in the detail, so there is no need to go into much detail. So let's suppose this is cortex, okay? This is medulla, and this is the spinal cord, and this is specifically the anterior horn of the spinal cord. This is, let's suppose, the left side, and this is the right side. Now let me change the color. Sorry. This color is okay. Okay, so the first nerve that start from the uh, cerebral cortex descend down to the medulla, uh, crosses to the opposite side in the medulla, that is called decussation, and end up in the contralateral side in the spinal cord, and specifically the anterior horn. From the anterior horn, the second order neuron arises, that's also called upper motor neuron. So this first neuron is called upper motor neuron, and this second neuron is called lower motor neuron. Now if there is any damage to the first neuron, that is called upper motor neuron lesion, and if there is any damage to this second neuron or this alpha motor neuron, that is called lower motor neuron lesion. So now let's briefly discuss that what will be the specific points about upper motor neuron lesions, and what will be the specific points about lower motor neuron lesions. तो याद रखें कि in upper motor neuron lesions everything will go up, and in lower motor neuron lesions everything will go down. So we will discuss some specific point and then we will move ahead. ठीक है? So नंबर फर्स्ट जो है वो हम ये अपर मोटर न्यूरॉन कट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये नर्व सप्लाई नीचे बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गई. So what happens that we will start with the Babinski sign or the plantar reflex. So the plantar reflex, the toe will move up, and in the lower motor neuron the Babinski sign or the plantar will move down. Number second one is the deep tendon reflexes. So deep tendon reflexes will be exaggerated in the upper motor neuron region and will be diminished in the lower motor neuron region. Third one is the muscle bulk. So the muscle bulk will be decreased in the both, but in the lower motor neuron region it will be too much decrease, and in the upper motor neuron region there will be sparing up to some extent. ठीक है? Let me summarize in a quick review that in the lower motor neuron region everything is moving down, like the Babinski reflex or Portal reflex will be down, deep tendon reflexes will be down, and the muscle mark and the muscle power will be down, and it will be so much down that because of this reasons we call the paralysis caused by the lower motor neuron lesions at the spaced flaccid paralysis, sorry. And in the same way upper motor neuron lesion made deep tendon reflexes are up, planters up, the muscle mass is decreased, but not as much as in the lower motor neuron, and that is why the mm, paralysis most of the time is called spastic paralysis when it is caused by the upper motor neuron lesion. Second one is vestibulospinal tract. तो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें कि इट इज़ ए डिसेंडिंग ट्रैक, सेम वे जिस तरह के हमारे साथ कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक था, लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि ये वाहिद डिसेंडिंग ट्रैक है, या इट इज़ वन अमंग द की डिसेंडिंग ट्रैक जो कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से निकलेगा और ये इप्सिलेटरल जाएगा. ठीक है? इट विल नॉट डिकसेट. तो इप्सिलेटर वाली बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस अगेन स्पाइनल कॉर्ड पे खत्म होगा और स्पाइनल कॉर्ड से सेकंड मोटर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बाहर निकलेगा. ठीक है? सो द फर्स्ट न्यूरॉन इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड न्यूरॉन इज द सेकंड ऑर्डर. अच्छा याद रखें कि हमने पढ़ा था कि वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक जो है ये हमारे एक्सटेंसर रिस्पांस को कंट्रोल करता है, लाइक इट इज की सप्लाइड टू द एक्सटेंसर मसल्स. ठीक है? और इट्स कंट्रोलिंग द एक्सटेंसर रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी. सो अगर आप खड़े होते हो, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द
huge contribution from the vestibulospinal tract. इसका मतलब ये है कि if there is damage to the vestibulospinal tract, you can lose your extensor response and you have problem in getting up. ठीक है, तो आप ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे. Is the रूब्रोस्पाइनल ट्रैक. नाम से पता चलता है कि रूब्रो फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस, और ट्रैक है कहाँ पे खत्म होगा, स्पाइनल कॉर्ड पे. वंस अगेन ए डिसेंडिंग ट्रैक है, एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर रूब्रो को रूब्रो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द iron and iron containing molecule accumulation in this nucleus. Let's draw a red nucleus. ठीक है, और यहाँ पे ड्रा करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये उसका इंटीरियर हॉर्न है. तो क्या करेगा, इज लाइक द अदर descending tracks. Its first neuron will descend down, will decussate to the opposite side and end up on the interior horn of the spinal cord, and from interior horn the second order neuron will move out. ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट न्यूरॉन हो गया और ये इसका सेकंड न्यूरॉन हो गया. और याद रखें कि ये मेनली फ्लेक्सर्स को सप्लाई करता है. ठीक है, तो इट इज अपोजिट टू द वेस्टिबुलो स्पाइनल जो कि एक्सटेंसर को सप्लाई करता था. ठीक है, फ्लेक्सर जो है हमें बैठने में हेल्प करता है. तो याद रखें कि इफ देयर इज डैमेज टू द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो द एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारे साथ पेशेंट को फ्लेक्सर रिस्पॉन्स डैमेज होगा एंड देयर विल बी डिफिकल्टी इन सिटिंग डाउन. सही. अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट बात जो है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में याद रखें कि जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये मेनली सर्वाइकल सप्लाई करता है, लेकिन सम ऑफ द फाइबर आल्सो सप्लाई द लंबर रीजन, दैट इज व्हाई इट्स हेल्प इन सिटिंग. हमारे डिसेंडेंट ट्रैक्स हमने पढ़ लिया कि कॉर्टिकोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल. कॉर्टिकोस्पाइनल वही अपर मोटर न्यूरॉन, ड्यूर मोटर न्यूरॉन की बात. वेस्टिबुलोस्पाइनल एक्सटेंसर रिस्पॉन्स, एंड द रूब्रोस्पाइनल वाज अबाउट द फ्लेक्सर रिस्पॉन्स. नाउ लेट्स कम टू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और ये एसेंडेंट ट्रैक्स हैं. और हमने पढ़ा था कि एसेंडेंट ट्रैक हमारे साथ 3 न्यूरॉन ट्रैक्स होते हैं, वो 2 न्यूरॉन ट्रैक्स थे. ठीक है, और हमने कहा था कि इसका सेकंड न्यूरॉन हमेशा डिकसेट करेगा, मीन विल मूव टू द अपोजिट साइड. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है इसके बारे में हमें एक फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे याद रखें, स्पाइन का मतलब है कि कांटा जो कि चुभता है, और पेन इम्पैक्ट करता है. सो स्पाइन इज फॉर द पेन, और टी फॉर थैलेमिक एंड टी फॉर टेम्परेचर. तो जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है ये ब्रेन की तरफ पेन और टेम्परेचर की मॉडलिटीज लेके जाता है फ्रॉम द पेरिफेरी. ठीक है, और पेरिफेरी हमारे जितने भी पेन के रिसेप्टर्स हैं या टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टू फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ब्रेन को लेके जाता है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक बात तो आप लोगों ने पहले से ही अंडरस्टूड की हुई है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है इसके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका डिकसेट कर जाता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर ब्रेन और स्पाइनल सॉरी ऊपर कॉर्टेक्स को जाता है. एंड इन सम बुक्स लाइक बीआरएस देयर इज आल्सो मेंशन ए फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन, लेकिन ये आपने कभी नहीं भूलने हैं. लेट्स फर्स्ट ड्रॉ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये हो गया इसका वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो हमने कहा था इसका एक पेरिफेरल प्रोसेस होता है जो कि रिसेप्टर इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और दूसरा इसका सेंट्रल प्रोसेस होता है जो स्पाइनल कॉर्ड में आके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ मिलता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, और ये इसका डॉर्सल रूट गैंग्लियन है. ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है जब सेकंड के साथ मिलता है तो हमने कहा था कि सेकंड हमेशा डिकसेट करेगा, तो द सेकंड डिकसेट टू द अपोजिट साइड एंड मूव्स अपवर्ड. ठीक है, और देन वंस अगेन थैलेमस एंड फ्रॉम द थैलेमस इनटू द कॉर्टेक्स, लेकिन हम सारा फोकस यहाँ पे कर देंगे. सो लेट्स सपोज ये हमारे साथ अभी फॉर टू फर्दर एलाबोरेट इट्स लीजन, लेट्स डिवाइड इट. लेट्स सपोज ये L1 का हो गया, ये हो गया L2, और ये हो गया L3. अच्छा, याद रखें कि हमने पढ़ा था कि ये फाइबर जो आता है तो ये एक लेवल ऊपर भी फाइबर देता है और एक लेवल नीचे भी फाइबर देता है, और ये फाइबर्स जो हैं ये सेपरेटली एक ट्रैक बनाते हैं जिसको हम डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लेजार बोलते हैं. ठीक है, तो इसका हमें फायदा क्या होता है कि लेट्स सपोज इट इज द राइट साइड ऑफ द बॉडी, इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और अगर आप डैमेज कर लो लेट्स सपोज इस हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब इस लेफ्ट साइड पे आप स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को डैमेज कर लो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सेंसेशन लॉस होंगे राइट साइड पे. लेट्स सपोज ये एक इंसान के पाँव में बना देता हूँ,
तो अगर इसका मैंने लेफ्ट साइड पे स्पाइनल कॉर्ड में ये ट्रैक डैमेज किया तो ये तो राइट से आता है, तो देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द राइट साइड। लेकिन किस लेवल पे? हमने कहा था कि ये एक लेवल ऊपर भी फाइबर देता है और एक लेवल नीचे भी फाइबर्स देता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का डैमेज हो गया तो ये L2 तक सेंसेशंस इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन L3 के नीचे सेंसेशंस खराब होंगे। तो ये हमेशा एक दो लेवल स्पेयर्स रखता है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि L1 पे डैमेज जो है वो डैमेज L1 के लेवल पे होगा, लेकिन सेंसेशन लॉस हमारे साथ L2 पे होंगे। बाज़ ऑथर्स ये कहते हैं कि आप इसको ऐसे याद रखें कि ये जब लेट सपोज ये फाइबर आता है L3 वाला, तो ये एक दो ट्रैक ऊपर जाता है और फिर जाके असेंड करता है, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे आपने काट दिया तो डैमेज L3 लेवल पे होगा हमारे साथ, क्योंकि फाइबर L3 का है। बट आई एम पर्सनली इन द फेवर ऑफ डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लेज़र, और नए जितने भी बुक्स हैं उस सारे बुक्स में डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लेज़र ही मेंशन्ड है। वो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम, तो इसके बारे में ये एक बात याद रखें कि ये सॉफ्ट मोडिलिटी लेके जाता है ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, लाइक पोजीशन, वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और ये डिकसेट नहीं करता इन द स्पाइनल कॉर्ड। सो लेट्स सपोज दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और ये वही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया, ये इसका पेरिफेरल प्रोसेस, ये सेंट्रल प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होगा और ये इसी तरफ ही ऊपर जाएगा, एंड इन द ब्रेन स्टेम इट विल साइनेप्स विद द ईदर न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटिस, और यहाँ न्यूक्लियस से फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे जो कि डिकसेट करेंगे टू द अपोजिट साइड, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो अगर ये लेफ्ट साइड डैमेज हो गया, सो लेट्स बी मैन मेक वंस अगेन अ मैन, ठीक है, और ये इसका मैंने L1 पे डैमेज किया, तो अगर इसका राइट लेफ्ट साइड जो है ये डैमेज हो गया है तो इसका इलाज ही लेफ्ट साइड पे ही होगा, राइट साइड पे ही नहीं होगा। इसको हम इप्सी लेटरल कहते हैं, जबकि स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक में आपको याद था कि वो कंट्रालेटरल लॉस देता था, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम, और ये सारे सिस्टम हम आगे जाके ब्राउन सेपर्ट सिंड्रोम में कंबाइन करेंगे। सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, या इसको एक फैंसी नेम ब्राउन सेपर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक सिंपल सा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रैक फर्स्ट। सो द फर्स्ट ट्रैक जो हमने डिस्कस किया था वो था ये, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रैक हमारा था कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक। सो लेट्स सपोज कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक राइट साइड से शुरू हुआ था, वहां पे डिकसेट किया, लेफ्ट साइड को पहुंच गया और एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंच गया। सो इट बिकम्स आवर अपर मोटर न्यूरॉन या न्यूरॉन नंबर 1, ठीक है। सो इट इज ए फाइबर ऑफ द कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक। नाउ लेट्स डिस्कस आवर सेकंड ट्रैक, क्योंकि हमें पता है कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ठीक है। ये हो गया इसका पेरिफेरल प्रोसेस, ये का सेंट्रल प्रोसेस। पेरिफेरल का प्रोसेस का मतलब है कि सेंसेशन इकट्ठे करेगा यहाँ से और सेंट्रल को लेके जाएगा, और ये सेंट्रल प्रोसेस यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक के साइनेप्स करेगा, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अपोजिट साइड को शिफ्ट होके कंट्रालेटरल जगह पे ऊपर जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक, ठीक है, जो कंट्रालेटरल जाता है। नाउ let's come to another track, that is dorsal column medial lemniscal system। सो यहाँ पे बना लेंगे ये, तो ये लेट्स सपोज सेंसरी सिस्टम से रेफरल प्रोसेस, ये फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, और सेंट्रल प्रोसेस जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, लेकिन सेंट्रल प्रोसेस हमने कहा था कि ऊपर जाता है ऑन द सेम साइड इप्सिलेटरली, और न्यूक्लियस ग्रेसिलस या न्यूक्लियस क्यूनियटस के साथ स्पाइनल ब्रेन स्टेम में डिकसेट कर सॉरी साइनेप्स करेगा, और फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे डिकसेटिंग टू द अपोजिट साइड। सो ये हमारे साथ एक फाइन व्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बन गया। नाउ लेट्स सपोज इफ आई डैमेज दिस पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो मेरे साथ कौन कौन से सेंसेशन लॉस होंगे। तो नंबर फर्स्ट मैं कर दूंगा, अच्छा यहाँ से सॉरी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन भी इसका निकलता है करना कार्टिको स्पाइनल ट्रैक का, जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये मैंने डैमेज किया,
तो यू कैन सी कि मैंने अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज किया, तो इट मींस कि मेरे साथ लेफ्ट साइड पे एप्सिलेटरली मेरे साथ अपर मोटर न्यूरॉन साइन होंगे। और एप्सिलेटरली याद रखें कि इसको आप ब्रेन तक ना लेके जाए, अगर ब्रेन पे डैमेज हो बोथ लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फिर कंट्रालेटरली कहेंगे। इस तरह के स्ट्रोक्स भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस एप्सिलेटरली होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड पाथवे जो मैंने यहाँ पे डैमेज किया वो है डॉर्सल रूट, डॉर्सल कॉलम मीडियल लिम्बेनस्कल सिस्टम। तो ये देखो ये एप्सिलेटरली जा रहा है, तो ये भी देयर विल बी एप्सिलेटरल लॉस ऑफ द पोजीशन सेंस, वाइब्रेशन, फाइन ट्यूनिंग, वो सब कुछ है ना। और थर्ड जो है, यहाँ पे मैंने कंट्रालेटरल राइट साइड से जो स्पाइनोथैलेमिक आ रहा था तो वो डैमेज किया, तो स्पाइनोथैलेमिक ऑफ द contralateral side. So there will be ipsilateral and at the level of the lesion loss upper motor neuron side. There will be ipsilateral and loss of the dorsal column medial levinescal modalities, and there will be contralateral and a level 2 below the level of lesion. Let's suppose अगर ये L1 है तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के लॉसेस L3 पे होंगे, ठीक है, और कंट्रालेटरल पे तो इसके लॉसेस यहाँ राइट साइड पे होंगे। सो होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सेरिंगोमाइलिया, ठीक है। सोमाइलिया मीन्स फ्रांस कार्ड और सेरिंग्स मीन्स सेरिंज जो हमारा होता है, ठीक है, ए ट्यूब, और यू कैन कॉल इट ए सिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये इसका अपना सेंट्रल कैनाल है, तो यहाँ पे आके इसका एक सिस्टिक सिस्टिक सा लीजन बन जाता है, और इस सिस्टिक से लीजन को हम कहते हैं सेरिंगोमाइलिया। सो लेट्स मेक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। हमें पता है कि हमारे साथ एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, और ये बोल बोल के मैंने आप लोगों के कान पकाने हैं। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन होगा, ये इसका पेरिफेरल प्रोसेस हो गया, ये इसका सेंट्रल प्रोसेस हो गया, और ये सेंट्रल प्रोसेस यहाँ पे आके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से मिल जाता है, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कंट्रालेटरल जाके ऊपर जाता है, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट साइड द सेम वे हमारे साथ डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये इसका पेरिफेरल प्रोसेस, ये इसका सेंट्रल प्रोसेस, और सेंट्रल प्रोसेस यहाँ आके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से मिल जाता है, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉसेस टू द अपोजिट साइड एंड देन असेंड्स अपवर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिस्टिक रीजन हमारे साथ और बड़ा हो गया तो इट विल डैमेज द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और वो भी ऑन ईदर साइड, तो ये साइड वाला भी डैमेज होगा और ये साइड वाला भी डैमेज होगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इसका जो टिपिकल लीजन होता है, लेट्स सपोज ये एक सुपरमैन है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, और ये इसने यहाँ पे वो कैप लटकाया होता है, सो इसकी एग्जैक्ट लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इज एट द कैप एरिया ऑफ द सुपरमैन, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैप लाइक लीजन। और याद रखें कि एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि एक आर्टरी क्यारी मेलफॉर्मेशन कौन से के साथ एसोसिएटेड होता है। सो इट इज मेनली एसोसिएटेड विद ऑर्गल क्यारी मेलफॉर्मेशन टाइप 2, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप you have understood the key concepts. Thank you so much.